Hello everyone, welcome to my channel Dr. Amit's Anatomy की पाठशाला. Now we will discuss femoral triangle, one of the very important question of lower limb. So what is this femoral triangle? First of all, introduction. So it is triangular depression in front of the upper one third of the thigh. So अगर हम देखें, this is the right thigh. So right thigh को अगर मैं upper one third, middle and lower में divide कर दूं, तो upper one third में you can appreciate this depression. This is triangular depression in the upper one third of the thigh. This is known as the femoral triangle. Normally visible नहीं होती, लेकिन अगर हम थोड़ा सा laterally rotate, flex और abduct करें अपने hip को, then we can easily appreciate this triangle. So this is immediately below the inguinal ligament. So this is the area of inguinal ligament. अभी हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज inguinal ligament पे अलग वीडियो है. So इस ligament के नीचे we have the triangle that is known as the femoral triangle. Boundaries of the triangle. Here first of all हम फ्रंट व्यू से देख रहे हैं, एंटीरियर से देख रहे हैं. दिस इज द राइट थाई अपर वन थर्ड. दिस साइड इज द लेटरल साइड, दिस साइड इज द मीडियल साइड. सो लाइक दिस. नाउ दिस थिंग, ये जो ऊपर है, दिस वन, दिस इज द इंग्वाइनल लिगामेंट. सो हमने बात की है बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट वी कैन अप्रिशिएट द ट्रायंगल. दिस इज फीमोरल ट्रायंगल. अब इसकी बाउंड्रीज की बात करें, द लेटरली, सो बाहर वाली साइड, लेटरल साइड, वी हैव muscle, this is muscle known as sartorius. So sartorius on lateral side. On medial side we have the here this is adductor longus. So main याद करने की चीज क्या है, borders. This is the medial border of sartorius and medial border of adductor longus. Both are medial. So both are MCQ question. दोनों में से कोई भी लेटरल नहीं है, दोनों मीडियल बॉर्डर हैं. दिस वन इज आल्सो मीडियल एंड दिस इज आल्सो मीडियल. सो लेटरल साइड वी हैव द मीडियल बाउंड्री ऑफ sartorius and medial side we have the medial border of adductor longus. Then base is directed upward. This one is the base, this is inguinal ligament. So ऊपर वाली साइड base है, this is base. Apex is directed downward. Here this is the apex. This is the area where both the lateral and medial boundaries are intersecting. So जहां पर हमारे पास sartorius and adductor longus intersect करते हैं, that is known as the apex. फर्स्ट ऑफ ऑल रूफ, अगर मैं डायसेक्शन करूं सबसे पहले थाई की, जब थाई की डायसेक्शन करूं देन वी हैव रिमूव्ड द स्किन रिमूव करके हमें मिलता है सुपरफिशियल फेशिया. इन दिस एरिया, इन द सुपरफिशियल फेशिया वी हैव द वेसल्स, वी हैव सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फीमोरल आर्टरी, वो हम आर्टरी वाले लेक्चर में करेंगे. एंड वी हैव वेन, दिस इज द मेजर वेन, सेफनस वेन, दैट इज द लॉन्ग सेफनस और ग्रेट सेफनस वेन. So this is a major content of the superficial fascia. Superficial fascia of thigh का major content है the saphenous vein with superficial branches of femoral artery and the vein. Then nerve, in this area we have the genitofemoral nerve, that is the branch of femoral nerve. So femoral nerve की we have the genitofemoral nerve. Then we have ilioinguinal nerve and we have the lymph nodes. These are superficial as well as the deep lymph nodes. So अगर मैं रूफ की डायसेक्शन करूं, सबसे पहले हमने स्किन रिमूव की, स्किन के बाद हमें सुपरफिशियल फेशिया मिला जहां ये स्ट्रक्चर्स मिले सारे. देन अब हम डीप फेशिया की बात करेंगे. आफ्टर दैट वी विल रिमूव द डीप फेशिया. द डीप फेशिया इज नोन एज फेशियल लाटा ओवर हियर. इस पे अलग लेक्चर है, बट इज फेशियल लाटा. सो फेशियल लाटा होता है इसके डीप फेशिया ऑफ थाई. देन अगर मैं फ्लोर की बात करूं, पोस्टीरियर मोस्ट वी हैव द मसल्स. सो इसकी फ्लोर बनाते हैं मसल्स लाइक दिस, दिस इज द मसल. अभी हम बात करेंगे. वी हैव मीडियली, दिस इज द मीडियल साइड, दिस वन इज द लेटरल साइड. सो मीडियली वी हैव फर्स्ट, जिसने बाउंड्री बनाई थी, दिस इज एडक्टर लॉन्गस, फर्स्ट मसल. देन सेकंड वी हैव द पेक्टिनियस. अगर मैं इन सबको रिमूव कर दूं तो इनके नीचे है, ये ट्रायंगल के सारे कंटेंट में रिमूव कर दूं, इनके नीचे ये मसल्स हैं. सो दे आर फॉर्मिंग द फ्लोर. देन वी हैव द टू मसल्स, दीज आर नोन एज इलियोश्वास. सो श्वास मसल, टेंडन और श्वास मसल.
and lateral most is the ilium. So like this we have muscles, we have the ilium, we have psoas, then we have pectineus, and we have the adductor longus from lateral to medial, IPPA. So ऐसे आप याद कर सकते हैं. Then what is cribriform fascia and what is saphenous opening? So दो टर्म्स पढ़ते हैं हम थाई से रिलेटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल द cribriform fascia. cribriform मीन्स होता है सीब लाइक फेशिया होता है. दिस इज एक्चुअली द अपरेटस और द ओपनिंग इन सुपरफिशियल फेशिया. सो सबक्यूटेनियस फेशिया, दैट मीन्स हमने डायग्राम में देखें, हमने स्किन रिमूव कर दी है, उसके बाद हमारे पास सुपरफिशियल फेशिया है. इन दिस सुपरफिशियल फेशिया वी हैव एक सीब लाइक ओपनिंग, दैट इज नोन एज द cribriform fascia. फर्स्ट क्वेश्चन. देन सेकेंडली, दिस इज फेशिया, द सीब, जो इसमें सीब लाइक एरिया बना, दैट इज फॉर द ओपनिंग. किसके लिए? सेफनस वेन. सो वहां से saphenous vein, we know saphenous vein is superficial. This vein will drain into deep, that is the femoral vein. So superficial से deep इस vein को travel करना है, तो ये पहले superficial fascia को pierce करेगी. जहां से superficial fascia को pierce करती है उसको बोलते हैं cribriform fascia. And यहाँ पर कुछ हमारे पास lymphatics होते हैं. Then the saphenous opening. Saphenous opening is the opening in deep fascia, that is the fascia lata. So this is the major difference, that saphenous opening in deep fascia and cribriform in superficial. C अल्फाबेटिकली पहले आता है, तो C superficial में है, S बाद में आता है. So ये deep fascia में opening है इसकी. Then it is relation with the inguinal ligament. It is related to the inferior है, and lateral to our inguinal ligament. Then यहाँ पर भी क्या एंटर करेगा? वही जो वार्सिक वेन आई थी, दैट इज दी saphenous vein. So great saphenous vein, first of all it will pierce the cribriform fascia, then it will pierce the saphenous opening, then it will open into the femoral vein. अगर मैं cribriform fascia की बात करूं, यहाँ सारी superficial arteries भी हैं, femoral artery की जो branches हैं, except this is the MCQ question, कौन सी नहीं होती? that is the superficial circumflex iliac. This is branch of femoral artery. So इसको छोड़ के बाकी की सारी superficial branches of the femoral artery आर रिलेटेड टू द cribriform fascia. ये क्यों नहीं है? जब आप femoral artery वाला लेक्चर पढ़ोगे वहां पे मैंने क्लियर किया है. सो इस स्लाइड्स में, इस वाली स्लाइड में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, दैट्स व्हाई ये स्लाइड यहाँ ऐड की है. कंटेंट्स ऑफ दिस ट्रायंगल, femoral ट्रायंगल की बात करें, दिस इज द ट्रायंगल जो हमने अभी बात की. इस ट्रायंगल के कंटेंट्स, इस ट्रायंगल में वी हैव द femoral artery in red color. This is the femoral artery and we have the branches of the femoral artery. These are the superficial and deep branches of the femoral artery. अगर femoral artery को हमने देखना होता है, अदरवाइज मैंने palpate करनी भी सिखाई है इन artery वाले लेक्चर में. So this is the inguinal ligament. So in the middle of this ligament we have artery. So midpoint में we have the artery. This is known as the femoral artery and its 6 branches. These are superficial and deep branches. These all are content of the triangle. Then we have femoral vein. This vein with the tributaries same है. Then we have the great saphenous vein, जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं. great saphenous vein, cribriform fascia and saphenous opening को pierce करके अंदर पहुंचती है femoral तक, because इसे यहाँ ड्रेन होना है. they are enclosed in femoral sheath. femoral sheath पे अभी हम करेंगे, वहां हम इसको दोबारा करेंगे. तो अगर नर्व्स की बात करें, यहाँ पर नर्व रिलेटेड है. सो डिफरेंट नर्व्स है. फर्स्ट ऑफ ऑल द femoral nerve. Femoral nerve, you can appreciate, this is the lateral most structure. Here this is the femoral nerve. हमने अभी निमोनिक किया है, VAN. N is the nerve, so this is the femoral nerve. Femoral nerve की peculiarities here. Femoral nerve is lateral to the artery. You can appreciate, artery medial है, इससे lateral we have the femoral nerve. Then femoral nerve is lying outside the sheath. It is very important. अगर आप डायग्राम से देखिए, this is the sheath. सो femoral nerve शीथ के बाहर होती है, शीथ के अंदर नहीं होती. femoral शीथ के अंदर नहीं होती, इसकी अपनी ग्रूव होती है. that groove is lying on the muscle. quite obvious, जो इसके पीछे मसल है उनमें एक ग्रूव होती है, that is the iliacus and the psoas major. इनके बीच में एक ग्रूव होती है. this is again MCQ question. कौन सी ग्रूव होती है? this is the groove for femoral nerve. किन मसल्स में होती है? in the iliacus and psoas major. इनके बीच में अपनी ग्रूव में ये ट्रेवल करती है outside the sheath. देन यहाँ पर femoral nerve आने से पहले, यहाँ आने से पहले, ट्रायंगल में आने से पहले एक ब्रांच देती है, दैट इज द नर्व फॉर द पेक्टिनियस. वो इंग्वाइनल लिगामेंट से पहले ही ये ब्रांच देती है. देन
It passes behind the sheath, behind the femoral sheath, anterior to the pectineus. एक यहाँ पे second nerve है, that is the femoral branch of genitofemoral nerve. That means genitofemoral nerve है, genitofemoral nerve हम lumbar plexus में पढ़ते हैं, उसकी एक femoral branch होती है, वो branch भी इस triangle में present है, but that is inside the sheath. वो sheath के अंदर होती है with femoral artery. That means जहां हम femoral artery sheath में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल उसके साथ हमने एक nerve पढ़ी, and this nerve is the femoral branch of genitofemoral. So यहाँ पर आपको मैंने दो nerves कराई हैं, confuse नहीं होना है. Femoral nerve खुद is outside the sheath. The branch, that is the femoral branch of genitofemoral nerve, is inside the sheath. Then this will give innervation to the area related to the triangle. Here we have the third nerve, that is the lateral cutaneous nerve of the thigh. The lateral cutaneous nerve of the thigh is lateral most structure. That means अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं, ट्रायंगल में lateral most we have the lateral cutaneous nerve of thigh. So this is lateral cutaneous nerve of thigh. इसके बाद we have the femoral nerve. lateral से medial की बात कर रहा हूं, femoral nerve. Then we have the femoral branch of the genitofemoral nerve. इनमें से सिर्फ femoral branch of the genitofemoral nerve is lying inside the sheath. यहाँ पर deep inguinal lymph nodes होते हैं. We know we have the deep inguinal lymph node as well as the superficial inguinal lymph nodes over here. Now femoral sheath. sheath क्या है? sheath की तरह structure है. That means ये funnel like एक structure है जो sleeve की तरह upper part of the femoral vessels, that is 3 to 4 centimeter of the upper part of the vessels को cover करेगा. मतलब इससे ऊपर एब्डोमेन है, एब्डोमेन के स्ट्रक्चर्स, दैट इज दी, अगर मैं एंटीरियर से बात करूं, दिस इज एंटीरियर साइड. सो एंटीरियर से बात करूं, डीप मसल, उसके अंदर फेशिया होता है हमारे पास, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ये एब्डोमेन के एंटीरियर साइड है. पोस्टीरियरली यू कैन अप्रिशिएट द मसल, दिस इज श्वास एंड द इलियाकस. सो इलियाकस के ऊपर एक फेशिया होता है, इलियाकस फेशिया. ये दो फेशिया डाउनवर्ड ट्रेवल करेंगे इनसाइड द फीमोरल कैनाल बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट. So anteriorly we have the fascia, that is fascia transversalis, and posteriorly we have the fascia of the iliacus. So fascia transversalis anteriorly question, posteriorly we have iliacus fascia. ये दोनों डाउनवर्ड एक्सटेंड करेंगे और ये अपर पार्ट, दैट इज 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ अपर पार्ट ऑफ द फीमोरल वेसल्स, बार बार बोल रहा हूँ, फीमोरल वेसल्स को ये कवर करेंगे स्लीव लाइक. दिस इज नोन एज द फीमोरल शीथ. शीथ की स्पेशलिटी करें तो दिस शीथ, अगेन दिस इज द मीडियल साइड, दिस इज द लेटरल साइड. सो दिस शीथ इज एसिमेट्रिकल. मीडियली दिस इज ऑब्लिक, ऐसे है, मीडियली ऑब्लिक है. लेटरली इट इज स्ट्रेट. सो लेटरली स्ट्रेट है, मीडियली ऑब्लिक है. फर्स्ट. सेकेंडली ये बनी कैसे, ये हमने कर लिया कि एब्डोमेन के जो फेशियस थे, दो लेयर्स वो एक्सटेंड हुए थाई में, उनकी वजह से शीथ बनी. अब इसने कवर क्या क्या किया, इसने कवर किया हमारे पास द स्ट्रक्चर्स. दीज आर द बेन. अभी हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में. बेन, femoral artery. The femoral nerve is outside of the sheath. It is the MCQ question. ये अगली स्लाइड में ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको. ये शीथ इंफीरियरली जब ट्रेवल करेगी, सुपीरियरली तो एब्डोमेन से डाउनवर्ड ट्रेवल कर लिए, inferiorly it will merge with the connective tissue of vessels. So inferiorly it will merge with the vessels of connective tissue of the vessels. This is known as the femoral sheath. Now जो ये femoral sheath हमने पढ़ी, ये femoral sheath आगे compartments में डिवाइड होती है. That means अगर अगेन वहीं देखें, this was the femoral sheath. ये femoral sheath अपने आप में compartment में डिवाइड होती है, like this. So we have the compartment inside the femoral sheath, 3 compartments from medial to lateral, या lateral से medial, किसी भी एक साइड से करो, anatomy एक साइड से करोगे, इजी रहेगी आपको. अगर हम lateral से medial साइड करें, so lateral most we have the artery, femoral artery. So lateral compartment is known as the arterial compartment. It contains femoral artery. Then intermediate या middle या intermediate compartment is venal compartment. इसमें है femoral vein. Innermost, that is the middle. This was middle, this is medial. Middle is intermediate, medial is innermost. So medial is lymphatic. इसमें lymph node होते हैं. कौन से lymph node? Lymph node of Rosenmuller or the Kloeckert. So here. So अगर हम again एक बार structure की बात करूं, we have the femoral artery.
देन फर्स्ट कंपार्टमेंट में आर्टरी, सेकंड में वेन, थर्ड में वी हैव द लिम्फ नोड्स। आर्टरी के साथ हमारे पास एक नर्व होती है, दैट इज द femoral branch of the genitofemoral nerve. This is the femoral branch of the genitofemoral nerve. This is the content of the sheath. ये sheath के अंदर ट्रेवल करती है। femoral canal. Again, next question. हमने बोला femoral sheath ने कवर किए हैं स्ट्रक्चर्स। सो 3 कंपार्टमेंट बनाए थे हमने, लेटरल आर्ट्रियल, देन मीडियल, दैट इज द मीडियन, सेंटर वाला मीडियन या इंटरमीडिएट, दैट इज वेनल, और मीडियल या इनरमोस्ट। सो इनरमोस्ट पार्ट जो है, दिस इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द femoral sheath इज नोन एज femoral canal. इट इज एक्चुअली ओपन। इसमें आपने देखा सिर्फ हमारे पास लिम्फ नोड है, इसमें फैट भरा होता है और लिम्फ नोड होते हैं। सो ये थोड़ी सी पोटेंशियल स्पेस है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द femoral canal. इट इज एक्चुअली कॉनिकल, इट इज वाइड ओपन अबव एंड बेस इज नैरो। कैनाल बेस में नैरो होती है। This is femoral canal. It is about 1.5 centimeter long and 1.5 centimeter width at the base. Femoral canal की अगर upper most part की बात करूं, this is known as femoral ring. So femoral ring is the uppermost part of the femoral canal through which the femoral triangle is communicating with abdomen. So abdomen और कैनाल के बीच में जो ओपनिंग है, दिस इज नोन एज femoral sheath, femoral ring. सो हमने टर्म की सबसे पहले femoral triangle, देन हमने की शीथ को हमने कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। शीथ का मीडियल मोस्ट पार्ट, लिम्फेटिक पार्ट जो है, उसको हमने बोला femoral canal. कैनाल का अपर मोस्ट पार्ट, दैट इज नोन एज द femoral ring. सो ये सारी टर्म्स कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं femoral canal की बाउंड्रीज की बात करूं, सो दिस इज द कैनाल, अगेन दिस इज द कैनाल. सो यू कैन अप्रिशिएट दिस इज फ्रॉम एंटीरियर, हम आगे से देख रहे हैं. सो एंटीरियर मोस्ट वी हैव दिस थिंग जिसकी हम बार बार बात कर रहे हैं. एंटीरियर मोस्ट वी हैव द इंग्वाइनल लिगामेंट. पोस्टीरियरली यू नो द शीथ्स, वी हैव द शीथ, हमने femoral शीथ की बात की थी. सो वी हैव द मसल एंड द शीथ, दैट इज द पेक्टिनियस मसल with its covering medially. So this side is the medial side. Medially we have special structure, this is known as the lacunar ligament. It is very important. क्यों important है मैं अभी applied में कराऊंगा. So medial side of this canal, medial boundary of this canal is formed by the lacunar ligament. Laterally you can appreciate the vein. So laterally we have the femoral vein. Inferiorly the vessels are closed by a ring. देन सुपीरियरली अगर मैं इससे ऊपर की बात करूं, वी हैव द एब्डोमेन. सो यहाँ पर एब्डोमेन में एक्स्ट्रा पेरिटोनियल फैट होता है. सो एक्स्ट्रा पेरिटोनियल कनेक्टिव टिश्यू फैट इसको कवर करता है, दैट इज नोन एज द femoral septum. femoral septum इज नथिंग, सेप्टम कवरिंग होती है. सो ये ऊपर से इसको कवर करता है, इसे बोलते हैं femoral septum. और यहाँ पर सेप्टम की वजह से एक डिप्रेशन बनता है, दिस डिप्रेशन इज नोन एज द femoral fossa. So this is the femoral fossa. कंटेंट हमने कर दिए lymph node of Cloquet और Rosenmuller. Then अब हम ड्रा करेंगे, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज femoral triangle. सबसे पहले हम ड्रा करेंगे ट्रायंगल. सो राइट साइड की ट्रायंगल ड्रा करने लगे. हमने बोला we have the anterior superior iliac spine, then pubic symphysis, pubic tubercle. सो इंग्वाइनल लिगामेंट वाला आपने लेक्चर किया होगा, उसमें मैंने बताया फ्रॉम एंटीरियर सुपीरियर iliac spine till pubic tubercle we have the inguinal ligament. This is the inguinal ligament. Now inguinal ligament से नीचे हमने बात की, that is the triangular space, that is the our femoral triangle. So laterally we have muscle, that is the medial border of our sartorius. So this is the sartorius, medial border of sartorius. Then on medial side we have another muscle, उसका भी medial border है, वही आपको catching point है यहाँ पर, medial border of adductor longus. So here we have the medial border of adductor longus. So ये ट्रायंगल बन गई. अब इस ट्रायंगल के कंटेंट्स करें. इस ट्रायंगल की अगर मैं रूफ की बात करूं, रूफ में हमने बात की वी हैव द वेन.
so we have vein, femoral vein. Medial side से we have the great saphenous vein. This is femoral vein. Then vein होगी. A is artery, that is the femoral artery with its branches. Majorly we have the lateral side branch, that is the profunda branch. Then N is nerve, femoral nerve. नर्व में मैं करवाऊंगा आपको, यहाँ पर ऐसे क्यों ड्रा किए मैंने. सो वी हैव द फ्यूमोरल नर्व. देन लेटरल मोस्ट वी हैव अगेन द लेटरल cutaneous nerve of the thigh. Then you will draw some lymph nodes like this. These are the structure present in the roof. अब इसी की फ्लोर ड्रा करूं. अगर जब हम इसकी फ्लोर ड्रा करेंगे नेक्स्ट डायग्राम में, ये सारी डायग्राम आपको प्रैक्टिस करनी है बिकॉज आपको एग्जाम में ड्रा करनी है. फ्लोर में lateral most eye, that is the iliacus muscle, you will draw iliacus muscle. Then IP, P is the tendons of psoas major, it is not minor, it is major, IP. Then again P, that is pectinis muscle. And medial most, we know we have the adductor longus like this will be the floor. फ्लोर आ गई. अब इसके अगर हम अगेन दोबारा सिर्फ अपनी मेमोरी के लिए कंटेंट बनाएं, लिम्फ नोड्स, वेन, देन वी विल ड्रा द वेन with great saphenous vein, then we will draw the artery with profunda branch and nerve. नर्व हमने बोला था इन दो मसल के बीच में, femoral nerve, lateral cutaneous nerve. अगर मैं इसको ऐसे काट दूं, सैजिटली काट दूं और सामने से देखने लगूं तो सेकंड डायग्राम जो आपको अगेन ड्रा करनी होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रा द स्किन. सबसे ऊपर स्किन होती है. स्किन के नीचे वी नो वी हैव द सुपरफिशियल फेशिया, सबक्यूटेनियस फेशिया. देन इन लेग, सबक्यूटेनियस से नीचे हमने बात की थी, वी हैव द डीप फेशिया, फेशिया लाटा. सबक्यूटेनियस में एक ओपनिंग बनाएंगे छोटी सी, दैट इज द क्रिब्रिफॉर्म फेशिया. और डीप वाले में वी हैव द सेफनस ओपनिंग. देन वी हैव द फीमोरल शीथ. फीमोरल शीथ में मीडियल साइड medial side we have the lymph node of Cloquet. Then we have the vein, femoral vein. Then we have the artery and a branch, that is the genitofemoral nerve. Then outside of this we have the femoral nerve. फिर हम मसल्स ड्रा करने स्टार्ट कर दें तो सेम है. Here this area I am going to draw. We have iliacus. Then next to iliacus we have the tendon, that is the muscle of psoas major. Next to that we have pectineus, and innermost or medial side we have the adductor longus. So like this you have to draw. ये दोनों डायग्राम्स आपको एग्जाम में ड्रा करनी है. So what is the femoral sheath? Femoral sheath sleeve like structure है, हमने बात की, जो अपर 3 to 4 सेंटीमीटर ऑफ द वेसल्स को कवर करेगा. अब पहले ये बनी कैसे, हमने बोला अगर मैं साइड से देखूं, लेटरल व्यू से देखूं तो we have abdomen and pelvis, and in the lower part we have the thigh. So abdomen and pelvis. तो abdomen से एक फेशिया है, that is the fascia transversalis. मैं लेटरली देख रहा हूँ, साइड से काट के देख रहा हूँ, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस. एंड यहाँ पर हमारे पास मसल है इलियाकस मसल, तो इसका फेशिया इलियाका, फेशिया इलियाकस will travel downward in the thigh posteriorly. Anteriorly fascia transversalis will trickle down. ऐसे हमारे पास दो फेशिया है. ये दोनों फेशिया एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं. ये दोनों फेशिया एक शीथ लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे. दिस इज नोन एज द femoral sheath. दैट मीन्स femoral sheath की anterior covering या anterior layer is formed by the fascia transversalis and posterior layer is formed by the fascia iliaca. So ऐसे femoral sheath बनी. इसके कंटेंट्स we have the, अब हम इसको ड्रा करते हैं. अगर मैं इसको ड्रा करूं, शीथ का posterior side fascia iliaca, शीथ का anterior side we have the fascia transversalis, then medial is oblique,
lateral wall is straight like this, we have the femoral sheath. Downward, नीचे अगर बोले नीचे, the both fascias they will merge with the vessel के connective tissue से merge हो जाएंगे. So ऐसे हमारे पास femoral sheath बनी. अब femoral sheath की बात करूं, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर we have the vein, या इसको पहले 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं. आउटर कंपार्टमेंट इज आर्टेरियल कंपार्टमेंट, इसमें है femoral artery. Intermediate compartment is venal compartment, femoral vein, and innermost is the lymphatic, that is lymphatic cloaca of lymphatic or the Rosenmuller lymph nodes. So ये innermost में. Then एक हमने नर्व बोली, that is the one nerve inside the sheath, आर्टरी के साथ साथ ट्रेवल करती है. This is the femoral branch of genitofemoral nerve. sheath से बाहर nerve, that is the femoral nerve. So this is about femoral sheath. So maybe अभी confusion हो रही हो तो इन तीनों को एक स्लाइड में इकट्ठा करते हैं. We have femoral triangle, we have femoral sheath and femoral canal. So what is femoral triangle? इसी एक डायग्राम में हम तीनों स्ट्रक्चर्स करते हैं. So we know this is the inguinal ligament. inguinal ligament से नीचे राइट थाई है, एंटीरियर व्यू है, आगे से देख रहे हैं. We have triangular depression, this is known as the femoral triangle. We have muscles on both sides. Medially we have adductor longus, middle head. Laterally we have the sartorius, middle head, दोनों का middle head. So this is triangle, femoral triangle. Then femoral sheath, हमने अभी बात की डिटेल में. This sheath like structure is the femoral sheath, and femoral canal, the medial most part of this sheath. हमने बोला था ये sheath 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड होगी. सो मीडियल मोस्ट एरिया जहां पर लिम्फ नोड ऑफ द क्लोएका होते हैं, ये वाला पोटेंशियल स्पेस है. दिस इज नोन एज द फीमोरल कैनाल. सो अगर कंटेंट की बात करें, फीमोरल ट्रायंगल्स, पहले ट्रायंगल के कंटेंट की बात कर लेते हैं. ट्रायंगल में लेटरल मोस्ट वी हैव द लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई, देन वी हैव फीमोरल नर्व, देन वी हैव फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन एंड लिम्फ नोड्स. आर्टरी के साथ एक और नर्व है, दैट इज द फीमोरल ब्रांच ऑफ द जेनिटोफीमोरल नर्व. सो दीज आर द कंटेंट ऑफ ट्रायंगल. अगर शीथ की बात करूं, सो वी हैव ओनली फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफीमोरल, आर्टरी, वेन एंड लिम्फ नोड्स. अगर कैनाल की बात करूं, वी हैव द लिम्फ नोड्स. सो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, और आई थिंक अब आपको काफी क्लियर होगा ये टॉपिक. अप्लाइड एनाटॉमी, femoral hernia. So femoral hernia, this is the protrusion of abdominal organ. अगर abdomen का organ most commonly intestine femoral opening से protrude हो जाए थाई में, तो उसको हम बोलते हैं femoral hernia. hernia is just protrusion. कोई organ अपने एरिया से दूसरी जगह से protrude हो गया, that is the hernia. So ये femoral triangle से protrude हो रहा है, that's why this is femoral hernia. It is very important. Femoral is very common in female. That means femoral hernia is common in female. Why? Because the canal is wide in female, because the pelvis is wide in female, because the size of vessels in female is less. So ये सारे रीजन है, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है और वाइवा क्वेश्चन है. देन इट इज ऑलवेज एक्वायर्ड, नो हेरिडिटरी, ये कंजेनिटल नहीं होता है. हर सैक का, इसका हर हर्निएटेड टिश्यू का अपना सैक होगा, लाइक दिस. दिस इज सैक एंड दिस इज द नेक. सो इसका अपना पार्ट होते हैं सैक एंड neck. Then course, it is important practically as well as viva. So इसका कोर्स कैसे होगा याद करने के लिए, जैसे ओपनिंग है, हमने बोला पोटेंशियल स्पेस कौन सी थी, femoral canal, that is the medial side. So medial side ही पोटेंशियल स्पेस थी, खाली स्पेस थी, यहीं से कोई टिश्यू, कोई ऑर्गन प्रोट्रूड हो सकता है. सो अगर हम एब्डोमेन की बात करें, इंटेस्टाइन का कोई ऑर्गन यहाँ से प्रोट्रूड होगा कैसे, पहले इस कैनाल के अंदर जाएगा, दैट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल पास डाउनवर्ड थ्रू द कैनाल टिल द ओपनिंग, सेफनस ओपनिंग तक जाएगा. देन सेफनस ओपनिंग से इट विल कम आउटसाइड, जैसे बाहर आएगा ये, देन फॉरवर्ड, एंड नाउ इट विल पास अलोंग द सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेसल्स. दोज आर द ब्रांचेस ऑफ दिस आर्टरी. इस आर्टरी की, फीमोरल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं, उसके अकॉर्डिंग ये टर्न करता है. सो दिस इज द पाथ ऑफ फीमोरल हर्निएटेड सैक. सो अगर कोई ऑर्गन यहाँ पे हर्निएट होता है या सैक आता है, तो पहले डाउनवर्ड आएगा,
डाउनवर्ड आएगा, फिर लेटरल अपवर्ड लाइक दिस। इसका यूज क्या है, जब आपको इसे ट्रीट करना है, यू कैन ट्रीट ऑन अपोजिट साइड। सो इस डायरेक्शन में आप ऑर्गन को वापिस अपनी प्लेस में रख सकते हैं। सो एक टर्म है बट इज स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द हर्निया। इफ द हर्निएटेड टिश्यू और द ऑर्गन, हम बार बार बात कर रहे हैं इंटरसाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर इंटरसाइन का कोई पार्ट यहाँ से हर्निएट हो गया है, अब ये यहाँ पे स्ट्रेंगुलेट हो गया, यहाँ पे टर्न हो गया, या इसका जो नेक है ये किसी भी रीजन से टाइट होगी, दैट इज नोन एज द स्ट्रेंगुलेशन ऑफ द हर्निया। अब स्ट्रेंगुलेशन की वजह से यहाँ पर टिश्यू, जो भी ऑर्गन आया वो स्टक हो गया, उसकी ब्लड सप्लाई डैमेज हो जाती है, ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है, दैट्स वाई पेशेंट विल हैव द पेन, एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा पेन होगी, नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब सर्जन को हर्निएटेड टिश्यू को तो रिमूव करना है या उसको तो हेल्दी करना है, उसके साथ साथ स्ट्रेंगुलेशन को रिमूव करना है। सो दे विल रिमूव दिस, हमने बोला था मीडियल बाउंड्री ऑफ द कैनाल, दैट इज द अवर लिगामेंट, दैट इज द लेकुनर लिगामेंट। सो इनको लेकुनर लिगामेंट, सर्जन को लेकुनर लिगामेंट की सर्जरी करनी पड़ती है, लेकुनर लिगामेंट को थोड़ा सा वाइड करना पड़ता है, दैट्स वाई द टिश्यू कैन हैज इट्स नॉर्मल ब्लड सप्लाई। सो ये क्वेश्चन है कि स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में किस लिगामेंट की को कट करते हैं, दैट इज द लेकुनर लिगामेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया की ट्रीटमेंट करते हैं तो वी नो दिस इज द लेकुनर लिगामेंट, सो दिस वन इज द लेकुनर लिगामेंट। तो लेकुनर लिगामेंट को हमने लास्ट स्लाइड में बात किया, इसको कट करके फ्यूमोरल कैनाल, ये वाला एरिया जो था, इसको हम वाइड कर सकते हैं। सो कैनाल कैन बी वाइडन बाय कटिंग द लेकुनर लिगामेंट। प्रॉब्लम क्या है, किसी किसी पेशेंट में एबनॉर्मल ऑब्टूरेटर आर्टरी होती है, नॉर्मली एबनॉर्मल ऑब्टूरेटर आर्टरी इज टुवर्ड द लेटरल साइड, लेकिन कभी कभी इट इज टुवर्ड द मीडियल साइड लाइक दिस, इट इज रिलेटेड टू द लेकुनर लिगामेंट। सो अगर ये रेगुलर लिगामेंट से पास कर रही है द एबनॉर्मल ऑब्टूरेटर आर्टरी, एंड इफ वी डोंट नो अबाउट दिस, अगर हमें ये स्ट्रक्चर पता नहीं है कि कभी कभी यहाँ हो सकता है इन रिलेशन टू द लेकुनर लिगामेंट, तो ड्यूरिंग सर्जरी वी कैन कट, वी माइट कट, हमने इसे काट दिया तो पेशेंट में है ब्लीडिंग, सो इसका भी ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग सर्जरी। लास्टली डिफरेंसेस बिटवीन इंग्वाइनल हर्निया एंड फीमोरल हर्निया। एक्चुअली एरिया सेम है तो थोड़ी बहुत ही कन्फ्यूजन हो सकती है, बट हम इसको क्लिनिकली डिफ्रेंशिएट करते हैं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्स, हमने बात की है एफ, फीमोरल इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल, इंग्वाइनल इज मोस्ट कॉमन इन मेल। देन प्रोट्रूजन ऑफ हर्नियल सैक, हमने बोला था हर्निया का जो भी टिश्यू है उसका सैक होगा और नेक होगा। अब सैक की कैसे डायरेक्शन होती है उससे हम बता सकते हैं। अगर सैक इंग्वाइनल कैनाल से बाहर है देन इट इज इंग्वाइनल हर्निया, अगर ये प्रोट्रूड हुआ फीमोरल कैनाल से तो ये फीमोरल हर्निया है। नेक्स्ट नेक, नेक की लोकेशन, नेक कहाँ है, अगर मैं एक बार फिर से बताऊं, कोई भी अगर चीज हर्निएट होती है लाइक दिस, सो दिस एरिया इज नेक एंड दिस वन इज द सैक। सो नेक की लोकेशन से भी हम बता सकते हैं कि हर्निया इंग्वाइनल है या फीमोरल है। सो अगर हम पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दिस डायग्राम, फर्स्ट डायग्राम को देखें, वी नो दिस इज द एरिया ऑफ इंग्वाइनल ligament. In second diagram, this is the area of inguinal ligament. So inguinal ligament clear है। inguinal ligament से ऊपर we have the inguinal canal, inguinal ligament से नीचे we have the femoral canal. So इससे भी clear होता है, that means जो inguinal hernia होगा वो inguinal ligament से ऊपर होगा, that is above the inguinal ligament. जो femoral hernia होगा that will be below the inguinal ligament. अब we know we have the pubic tubercle. सो pubic tubercle पर इंग्वाइनल लिगामेंट की अटैचमेंट है, सो इससे भी हम क्लियर कर सकते हैं। सो इफ द herniated tissue or the neck of the herniated organ is medial, medial is medial side, is medial to pubic tubercle, तो ये इंग्वाइनल है। एंड इफ दिस नेक इज लेटरल टू pubic tubercle then this is the femoral है। सो कैसे डिफरेंशिएट हुआ, एक तो इंग्वाइनल हर्निया अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट होगा, दूसरा फीमोरल हर्निया बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट होगा। सो इंग्वाइनल हर्निया अबव द इंग्वाइनल लिगामेंट एंड फीमोरल विल बी द बिलो, बिकॉज इनकी लोकेशन ही ऐसी है। अब इंग्वाइनल हर्निया मोस्टली इस एरिया में होगा, दैट इज द मीडियल टू द pubic tubercle, बट फीमोरल हर्निया मोस्टली
इस एरिया में होता है, दैट इज द लेटरल टू द pubic tubercle. So I think it's very clear now. So thank you. If you have any question, any query, you can ask me. If you like my channel, like it, subscribe it, and share it.